Good morning, students. I am Prabhakar once again with a new video on ESI Act 1948, and today we are going to start with chapter 2. As in my previous video we have almost completed section 1 and section 2, and today we are going to study the administrative agencies related to this ESI Act 1948. एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से किन जो एजेंसीज है, किन पोजीशंस को क्रिएट किया गया है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस chapter 2. Here it has been defined over here, that is Employees State Insurance Corporation. Then we are going to study a standing committee also, and related to that we are going to study Medical Benefit Council also. So this segment is related to only the information, because as per the ESI Act 1948 the constitutions related to all these three administrative agencies are being elaborated, that is एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसके पावर्स क्या होते हैं. पर्टिकुलरली इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी दिस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑल्सो itself, but we are going to study standing committee and medical benefit council also. So we start from this section 3, establishment of employees state insurance corporation. With effect from such date as the central government may by notification in the official gazette appoint in this behalf, there shall be establishment for the administration of the scheme of employees state insurance in accordance with the provision of this act. So as I told you कि administration के लिए ESI Act 1948 के administration and channelization के लिए जो है इसको बनाया गया employees state insurance corporation को. और इस कॉरपोरेशन में ये बताया गया कि द कॉरपोरेशन शैल बी ए बॉडी कॉरपोरेट बाय द नेम ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील एंड शैल बाय द सेड नेम सू एंड बी सूड. मतलब ये है कि ये कॉरपोरेशन जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह काम करेगा, परपेचुअल सक्सेशन की तरह. मतलब वो आगे जो है कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और एट द सेम टाइम उसका अपना कॉमन सील होगा, और उस को वो एक एंटिटी के रूप में काम करेगा जिसके अगेंस्ट केस हो सकता है और वो किसी के अगेंस्ट में केस कर सकता है. तो ये सारे प्रोविजंस देंगे. देन सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट कंस्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन. यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ये कॉरपोरेशन कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन लोग रहेंगे, ये नंबर्स को डिफाइन किया गया है. यहाँ पे आप ऑलरेडी इनकी लिस्टिंग देख सकते हो. ये लिस्टिंग को अपने को जो है याद करने की ज़रूरत है. देन वंस यू गो थ्रू द लिस्टिंग गिवन इन दिस constitution of this employees state insurance corporation, then in section 5 they have talked about term of office of the members of the corporation. वो जो है उन टर्म, उनका टेन्यूर क्या रहेगा, उनका सर्विस पीरियड क्या रहेगा. तो उसमें कुछ ABCDE ऑफ सेक्शन 4 जो है उनको छोड़ के ABCDE एंड जो है सेक्शन 4 को छोड़ के एंड एक्स ऑफिसियो जो मेंबर है उनको छोड़ के जो है बाकी लोगों के लिए 4 साल का वो टाइम पीरियड रहेगा कि उसके लिए जो है उनकी सर्विसेज ली जाएंगी. देन सेक्शन 6 talks about eligibility for reappointment or re-election. An outgoing member of the corporation, the standing committee or the medical benefit council shall be eligible for re-election as the case may be. यहाँ पे re-election की बात करी गई है, मतलब वो फिर से re-appoint या re-elect होके फिर से वो आ सकते हैं, ये leverage दी गई है. Then section 7 talks about authentication of orders, decisions. All orders and decisions of corporation shall be authenticated by the signature of the director general of the corporation, and all other instrument issued by the corporation shall be authenticated by the signature of director general or such other officer of the corporation as may be authorized by him. Then उसके बाद section 8 talks about constitution of standing committee, और standing committee of the corporation shall be constituted from among its members consisting of. यहाँ पे भी जो है स्टूडेंट्स standing committee के जो मेंबर रहेंगे उसके बारे में जो है कौन कौन उसमें लिस्टिंग रहेगी, कौन से मेंबर रहेंगे उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है. देन उनके जो टर्म्स हैं उसी के प्रोस्पेक्ट में, कॉरपोरेशन के ही प्रोस्पेक्ट में, या स्टैंडिंग कमेटी के भी जो टर्म्स हैं वहाँ पे उसी प्रोस्पेक्ट में डिफाइन किए गए हैं.
और इनका टेन्योर 2 साल के लिए रखा गया है, जिसमें कुछ जो है एक्सेप्शंस दिए गए हैं, बट नॉर्मल जो उनके जो मेंबर्स रहेंगे उनका 2 साल का जो है टेन्योर दिया गया है। देन मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेल कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ भी स्टूडेंट उनकी लिस्टिंग की गई है और उनको जो है बताया गया है कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा। देन सेक्शन 11 talks about resignation of membership. A member of the corporation, the standing committee or the medical benefit council may resign his office by notice in writing to the central government and his seat shall fall vacant on the acceptance of the resignation by that government. तो यहाँ पे तीनों जो कॉरपोरेशन है या फिर स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हो, उनके रेजिग्नेशंस के बारे में जो बताया गया मेंबर्स का रेजिग्नेशन का अप्रोच कैसा रहेगा। देन सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप को स्टॉप कैसे किया जा सकता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के मेंबर्स हों, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हों या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर हो, उनके सर्विसेज को स्टॉप कैसे किया जाता है उसको डिस्कस किया गया है, उस पावर को डिस्कस किया गया है। देन ऑन विच ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशंस मे बी इम्पोज्ड, this is important students. Section 13 talks about disqualification of members. A person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of the कॉरपोरेशन, द स्टैंडिंग कमेटी और द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। और वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उनके ग्राउंड क्या क्या हैं। इफ़ ही इज़ डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देता है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब है स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन एलेबरेटेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अनसाउंड का मतलब वो बैलेंस माइंड का नहीं है, वो ही इज़ नॉट मीन्स कॉम्पिटेंट टू टेक रैशनल डिसीजंस, तो उसको अनसाउंड माइंड बोला गया है। एंड इफ इट any competent court declares that person with unsound mind, then in that prospect automatically the membership of that person would be disqualified, whether he is in corporation or in a standing committee or he is in medical benefit council. Then if he is an undischarged insolvent, अगर जो है वो insolvent undischarged insolvent है तो भी उसका जो है disqualify हो जाएगा। If he has directly or indirectly by himself or by his partner any interest in subsisting contract with or any work being done for the corporation except as a medical practitioner or as a shareholder, नॉट बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, मीन्स अगर वो कहीं और भी इन्वॉल्व हो रहा है, अपने सर्विसेज को दे रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड इफ़ बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, मतलब कोई मोरल जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है और कन्विक्टेड हो गया है बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इवन इन दैट ऑल्सो ही वुड बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक डिस्क्वालिफिकेशंस को रखा गया है। देन फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के वैकेंसीज़ को कैसे फिल किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स। Vacancies in the office of or elected member of the corporation, the standing committee, medical benefit council shall be filled by appointment or election as the case may be। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। Then fee and allowances की बात की गई है। Members of the corporation, the standing committee and the medical bonus council shall receive such fees and allowances as may from time to time be prescribed by the central government। मतलब जो fees and allowances central government prescribe करेंगे वो उनको मिले, fees and allowances मिलता रहेगा। So student, today we are going to we have almost covered up to section 15, and in my last video we are going to study principal officer and staff as per your syllabus. So thank you very much for today's session students.